delay. There was a little connection issue. That's fine. 4 minutes is not a delay. Okay. Hi, Kathy. So I was just telling the audience a little about you, but I think it's best if, without any further delay, you tell us about your career a bit, and then we can just jump into the questions. Definitely, why not? My name is Khyati Rupani and I am a nutritionist by profession. Is everybody able to hear me? Yeah, I think so. Yes, I think you're audible. Perfect. So I'm a nutritionist by profession. Nutritionist बनना तो नहीं चाहती थी, never ever. Doctor बनना था. So wanted to become a doctor, had the brains to become one, but got admission in places like Dhule and where Papa couldn't fathom ke tum jao. So once I think you are off that phase, what happens is, I was like, hi guys, I'm live on Facebook also, so the audience is there also are saying hi to us. So it was by luck, by fluke, I became a nutritionist. एक साल CET के लिए waste करना था, तो I said चलो ये college चले जाते हैं, mom will be happy. And then there was no looking back. Then I finished my masters, did clinical nutrition, and so on and so forth. And that is what we are. I started my career as being a dietitian at Leelavati. I got promoted to being the chief, and I was only 23 that time. So yeah, it's been 15 years. I need the celebrity nutritionist, so quite the famous one out here. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. So that's it. I became a nutritionist, and today, yes, we have a team of 60 people, and yes, we have online programs for weight loss, lifestyle management. In fact, because of the lockdown, we had to come out with a lot of cleansed diet plans also. And yes, that's how we operate. We operate out of an app, and it's completely personalized. Super. So jumping right in with a couple of questions that I have right now, and we will address more as they come in. So, first thing is my own question. Like, I love to pamper myself, especially like to eat. I love my hair to be good. I love my food. I love my skin. So I just want to understand how we bring a balance, because see, food, I really think it's the internal that affects your hair and skin. I've always believed in that. Like, it's nothing external. External, I think, honestly, it's just like a foundation. It's not really clearing things. You're right. You're absolutely right. The first and foremost, we have to understand only one thing, that whether it is beauty, whether it is youth, whether it is hair, whether it is your skin, whether it is your bones, whether it is the way you feel, the entire thing is controlled by just one element in your life, and that is your khana. Okay, so it is that deeply connected. Your followers maybe wouldn't know, but yeah, a lot of my Facebook followers know that I was 99 kgs myself. So after मैं कभी पतली नहीं थी. Like the 55 kgs that I'm right now, I was never that. Okay, तो हुआ ये कि you don't really pay attention. पहले से पता नहीं तब एक टैग लगा रहता था, पड़ाकू टाइप की लड़की है. So I used to always love sitting in postures which I never understood कि I'm slouching, और पढ़ा करो पूरा दिन और खाते रहो. And the brain used to work only when the food used to go in. That is what I thought it was like. Okay, then I didn't realize I was always 75 kgs. And yes, I think that was it. We were very happy, and pata nahi chala yaar. In the hospital also, I was clinically qualified, so I used to take care of people who are in the intensive care, plan feeds for them, so I used to enjoy that kind of work. And फिर शादी हुई, of course, and then when you want to have a baby, you want to go and check yourself ना कि चलो बच्चा पैदा करना है. Let's just once you're a nutritionist, you're in Leelavati, okay, so anyone would say चलो ठीक है, let's just take a call and let's just make sure कि हम कैसे हैं. तब जाके पता चला कि PCOS हुआ है. I think a lot of our your followers, lot of our followers here on Balanced Nutrition would know that today 1 out of 3 women have PCOS. PCOS is a hormonal disorder जिसकी वजह से weight gain होता है, infertility होता है. But I had to battle that myself. So I had two choices. एक था कि दवाइयाँ लो, those 25-day का पूरा course करो, do all of that. Okay, that was one option, and the other option was go clean, eat clean, live clean,
make sure that you are doing clean. So yaar, I did clean, I ate clean, but then you're a foodie at heart. So, if I tell everyone that skin ke liye, junk mat khao, ye mat khao, wo mat khao, it's not going to be possible. So there had to be a practical way. See, I was not mota by definition. I was mota because I loved eating. Honestly, we all like eating, right? So that was it, that is how it was. And yes, for skin, for hair, and for looking good, all right, there are two ways to go about it. Way one, go on a diet which is extremely, a diet where I will have to send you to the Himalayas. Okay, where no pollution and no dirty water and all of that. और दूसरा है हमारा तरीका एक ही है, that balance everything out. Like, I'll give you one example. Yesterday there was pizza ordered at home. Despite, अरे चलो lockdown है, ठीक है. So there was pizza ordered at home yesterday. And what we did was we ordered only one. Okay, 4 लोग होंगे अगर suppose खाने में. Brother-in-law had come in and we ordered only one pizza. What I did was, before the pizza came, I made sure my little one had a ragi. See, that hunger pang is there at 8:30, right? So little one had a ragi. Yes, I had dosa batter. So little one had I had ragi atta. Dosa batter में ragi atta डाला. I whipped it up. I had vegetables always in the fridge. We all have. जो भी हाथ में आया grate करो. I made a lovely uttapam for her. She's happy. Husband also, yesterday we had office on for a few hours, because of those norms you have now, that 33% staff. So he came in, he was very hungry. He also ate a couple. I ate a couple with a bowl of salad. So we all ended up eating one slice of pizza. But see the nutrition. Correct. Pizza bhi khaya, पेट भी भर गया. So this is what, yes, this is what you all should do. You must make sure that you all are balancing things out. Now a simple other thing, everybody says मुझे बादाम खाना है, मुझे घी खाना है, right? Badam is very good for the hair, cashew nut is very good, and pista is very good, but they all are extremely high calorie nuts, right? Most of us think that they are very high in cholesterol, right? है ना? What according to you, which nut you think is the highest in cholesterol? Walnut, almond, pista, which one? I think cashew. None of the above. Oh. कोई भी नट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है. आप लोग तो बहुत पैसे देते हो, है ना? पीनट में भी नहीं है. आप लोग तो बहुत पैसे देते हो ना. नहीं गाइज, आई एम अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. आई कैन गिव यू my certificates. I just won an award also by Times. So I have not lost my head. ठीक है ना? आप लोगों को लगता होगा ये पागल हो गई है, बट नहीं. Whenever you all do your blood report, क्या आपको नहीं दिखता? There is HDL, LDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये 4 आते हैं हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में. yes or no? Isn't it? Yes. Right. So yes. So whatever you eat, and if that is coming from a plant, it does not have cholesterol. तो आप बड़े पैसे देते हो ना, ये वाला ऑयल 0 कोलेस्ट्रॉल है, ये वाले ऑयल में ये है, वो वाला ऑयल. You all always have a question, which oil is the best oil? Isn't it? But it doesn't make a difference. है ना? But it doesn't make a difference. It's I like, am not a big fan of all this organic or this is different. I totally believe in this balance and portion control. Exactly my point. Exactly. So what मेरे को क्या बताना है सबको कि यार कोई भी खाना है ना, is not worth $1 million. ओके, अगर आप एक बोल, आजकल ग्रेनोला और म्यूसले बड़े चले हुए हैं, तो 1200 रुपए की म्यूसली आती है 500 ग्राम्स की. यार घर बना लो. I mean, there are recipes on my website. Go www.balancenutrition.in, find out your recipes and please make those at home, because they are not worth that much and they are not a superfood. They are not going to save your life. Balancing it out, making sure what you want to do is the mantra for being healthy or even losing weight. है ना? That is how. So now, yes. So again coming back to cholesterol plants में है नहीं. और अगर आपको ऑयल का कोई क्वेश्चन है तो आई मस्ट टेल यू समथिंग, दैट जो ऑयल आप ले रहे हो, कंसिडर इट लाइक योर सब्जी. क्या आप हर दिन कैबेज की सब्जी खाओगे क्या? राइट? आप हर दिन कैबेज की सब्जी खाओगे तो आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे? सो जो फैटी एसिड्स पीनट ऑयल में है वो राई के तेल में नहीं है.
जो ऑलिव ऑयल में है वो किसी में नहीं है. सो इफ यू वी ऑल आर मोस्टली अ न्यूक्लियर फैमिली, हम लोग 3, 4 या 5 लोग रहते हैं. तो आई से दैट 1 लीटर या 2 लीटर का ऑयल का एक डब्बा ले आओ, वो टेट्रा, सैशेज, वॉट एवर यू ऑल यूज, लेकिन वो चेंज करो. इस बार राइस ब्रांड खा रहे हो, ठीक है ना, तो अगली बार सनफ्लावर ले लो, अगली बार पीनट ऑयल लेना, अगली बार कुछ. आर यू ओके? you're shaking too much. You're fine? I'm trying to pin the comment actually. So हाँ. that, we have people, the viewers are not lost. Sorry. हाँ, ठीक There है. is some people on questioning, thinking they want to ask a question. So I'm just trying to tell them that yes, please. नहीं, I will read up here also and on Facebook. Don't worry about that. We'll scroll through. ठीक है ना? I'm just pinning the हाँ, comment. Yeah. हाँ, Yeah. yes. So what I wanted to say is that कोलेस्ट्रॉल किसी में नहीं है, लेकिन आपकी ब्लड रिपोर्ट की ट्राइग्लिसराइड्स और आपकी ब्लड रिपोर्ट के HDL एंड LDL जो है वो इस पे डिपेंडेंट है. आपका कोलेस्ट्रॉल किस चीज से बढ़ता है पता है? वॉट एवर कम्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है. और वो एनिमल से क्या आता है पता है आपको? दही एनिमल से आएगा, तो दही में कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि एनिमल्स गाय और भैंस का ही दूध बनता है. दूध का आप दही बनाओगे, तो दूध में कोलेस्ट्रॉल है, हाँ है. अंडे में है, हाँ है. चिकन में है, हाँ है. ओके, सो देर इज कोलेस्ट्रॉल एंड देन देर इज नो कोलेस्ट्रॉल, राइट. सो इसीलिए लोग नट मिल्क पीते हैं. जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है ना, उनको नट मिल्क बोलते हैं पीने को. बट आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक, बिकॉज उसमें भी तो फैटी एसिड्स है. सो आई जस्ट वॉन्टेड यू ऑल टू बी अवेयर. अगर आप कोलेस्ट्रॉल फ्री न्यूट्रलाइट लेते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बड़ी चीज कर दी. आप फिर भी फैटी एसिड्स खा रहे हो और आपका LDL बैलेंस नहीं रहेगा. अगर आप ट्राइग्लिसराइड भरा वो गंदा सा स्प्रेड खा रहे हो, यू बेटर ईट द बटर, बिकॉज बटर हैज कोलेस्ट्रॉल. बटर आता है, right? So this is the concept cleaning that also have good cholesterol. No, if you don't have the organic or the non-salty butter, नहीं, the makhan that they say that every मक्खन नहीं, मक्खन मलाई से आएगा. मलाई कहाँ से आ रही है? दूध से आ रही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, बैंग ऑन, ठीक है. सेम वे द कंफ्यूजन बिटवीन जैगरी, द कंफ्यूजन बिटवीन हनी, गुड़, हनी और शक्कर. आप डायबिटिक्स मुझे बोलता है मैंने मेरी चाय गुड़ में गुड़ डाला है. यू नो, ऐसा नहीं होता. हनी 1 चम्मच, गुड़ 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, कैलोरी सेम है. ओके, हनी इज हैविंग अ ट्रेस, अ स्मॉल. हनी खाते कितना है हम? 1 चम्मच, आधा चम्मच. उसमें ना इतना सा ट्रेस मिनरल्स है, बस. वो बॉडी के लिए कोई काम नहीं करता. यू आर नॉट ईटिंग अ कटोरी ऑफ हनी इन अ डे, इजंट इट? सो दैट इज नॉट समथिंग दैट मैटर्स एट ऑल, है ना. फिर हम खाते हैं गुड़. हमको लगता है गुड़ इज हेल्दियर. अरे गुड़ हेल्दियर इसीलिए है, या गुड़ का हेल्दी होना हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, बिकॉज गुड़ में सिर्फ आयरन एक्स्ट्रा है. तो आप जो भी खाओ, आप जरा ब्रेन को खोल के खाओ. ओके, जस्ट बिकॉज इट हैज जैगर. अभी शुगर फ्री स्वीट, आई मीन फॉर गॉड सेक, उसमें अंजीर और खजूर भरा पड़ा है, उसमें कैशू नट्स का पेस्ट या कैशू नट पाउडर करके डाला है टू गेट अ क्रंच. अंजीर बर्फी फॉर एग्जाम्पल, है ना, उसमें वो डाला है हमने, इजंट इट? बट द फैक्ट हियर इज दैट it has a very high amount of natural sugar. तो अंजीर बर्फी खा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि 4 खा लो, है ना. हमको लगता है ना हेल्दी है, शुगर फ्री है, चलो मैं खा लेती हूँ. ऐसा नहीं होता. और डस्टबिन कल्चर बोलती हूँ मैं उससे. मैं बोलती हूँ अपने आप को डस्टबिन मत समझो. I've come to a thing that it's fine, let it go, but I don't want to overeat it. Like, even if it's however expensive or however, like, you know, like exotic, I don't want to eat it. If it's like more than what exactly, I get to overeat, and I'm learning to control that. जी. So coming to our next question, Kathy, very related to how this whole, I think everyone does this, stress and panic is leading us to purchasing a lot more during lockdown, and then there's bottom eating that's happening and all of that, and how does one control that? एक ही प्रॉब्लम है. यू नो, पहले जब मैं मार्च और अप्रैल और जून तक जब मैं लाइव्स करती थी, तब ये परचेसेस ना बहुत ज्यादा होती थी. लेकिन अगर अभी मैं बोलूं, ओके, वेदर इट इज अ सिचुएशन ऑफ कोविड और वेदर इट्स एन एपिडेमिक, हम तो हमेशा एपिडेमिक के बीच में जीते ही आ रहे हैं ना. आप लोगों को क्यों लगता है कि डायबिटीज एक एपिडेमिक नहीं है? कोविड तो फिर भी आके चला जाता है, डायबिटीज तो हमेशा रहता है हमारे साथ.
It is a silent killer just because, see, what happened was I was doing a live with somebody who survived COVID. पूरी फैमिली ने कोविड सर्वाइव करा, तो उन्होंने मुझे एक बोला कि ख्याति सबसे पहले तो न्यूज देखना बंद करवाओ सबका, यू नो, न्यूज बंद करवाओ. एंड बोल रहे कि यस, और मतलब कोविड की वजह से नहीं, इंसान मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सो स्केर्ड दैट दे गॉट कोविड, देयर हार्ट इज फेलिंग इन दैट शॉक. ओके, सो इट्स अ शॉक. इवन द ओल्डीज, यू नो, बेचारे वो ओल्ड अंकल या आंटी को लगता है, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड. So a lot of it is due to anxiety and a lot of it is due to that shock. That creates with your brain, your body, and I think automatically you just don't know how to fight back because your mindset is very important. I totally जी agree हाँ, with that. that's right. तो ये हुआ हमारा सबसे पहला वाला इशू. सेकेंड इशू ये है कि कोविड इज अ डिजीज, ओके, अ डिजीज दैट इज कमिंग एंड पीपल आर बिकमिंग. क्योर है, एटलीस्ट एक क्योर है, लेकिन आपको पता है थायराइड का, डायबिटीज का, इनका तो कोई क्योर ही नहीं है. ये तो लाइफ लॉन्ग आ गए तो ब्लड प्रेशर आ गया तो आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया तो आ गया, लेकिन ये कभी जाएगा नहीं. इट इज अ डिसऑर्डर. सो व्हाई आर दे फाइंडिंग अ वैक्सीन फॉर कोविड? वैक्सीन्स आर फाउंड फॉर डिजीजेस. दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वैक्सीन फॉर डायबिटीज, इजंट इट? बिकॉज वो डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या करना है? Precisely. So scientifically a disorder has no cure. ठीक है ना? और जिसका कोई क्योर नहीं होता उसका मैनेजमेंट होता है. और वो मैनेजमेंट कैसे होता है पता है? दो चीजों से. एक है लाइफस्टाइल को मैनेज करो और दूसरा है डाइट मैनेज करो. अब आते हैं स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिस्कशंस पे. Stress is something that is a very very silently affecting disorder that I think we all have. We all are living in this 21st century post-modern world. Work from home, सबको लगता था वर्क फ्रॉम होम मजे वाला होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. वर्क फ्रॉम होम इज नॉट मजे वाला एट ऑल. वर्क फ्रॉम होम पीपल आर वर्किंग फॉर 16 hours. 16. Having your child and all, your husband around, oh my God, I think now it's getting like, please go all of your... Exactly my point. So work from home is become a little more stressful. And आजकल anxiety related talks हमारे actresses भी बहुत बोलते हैं, but we all are suffering from that. Okay, food and your mood, they both have connections. We must realize that कि आप जो खा रहे हो 110% आपके दिमाग पे वो असर आने वाला है. इसलिए हम हमारे सारे स्ट्रेस्ड क्लाइंट्स को एक रेसिपी देते हैं ऑफ मून मिल्क. टीम, इफ यू ऑल आर वाचिंग दिस लाइव, कैन यू ऑल पुट द रेसिपी ऑफ मून मिल्क इन द कमेंट्स. दैट रेसिपी सपोज टू बी अ वेरी कामिंग रेसिपी. ओके, अगर कोई डाइट फॉलो भी नहीं कर रहा, जी हाँ, अगर कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा तो भी वो ये मून मिल्क तो जरूर पी सकता है. इट इज सेफ फॉर एवरीवन, इवन इफ यू हैव कोलेस्ट्रॉल, इवन इफ यू हैव डायबिटीज. ठीक है ना? तो वो मून मिल्क जरूर बना के पी लेना. एक इमेज भी है और एक रेसिपी लिंक भी है. कैलाश, भावना, व्हाटएवर यू ऑल कैन पुट, प्लीज पुट इट अप. ओके, तो एक हुआ हमारा जरूर. यस, ठीक है ना? एक वो हो गया. And second is, a lot of our stress and our mood also depends on our immunity. अब जाके इम्यूनिटी की बातें बहुत होने लगी है, लेकिन एज अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हमारा सबसे पहला जॉब होता है कि हम इम्यूनिटी पे काम करें. हमेशा अगर कोई वेट लॉस के लिए आए या कोई डायबिटीज के लिए आए, टेल देम दैट आपका वेट लॉस तो फ्री है, मुझे आपके इम्यूनिटी पे काम करना है, मुझे आपके फैट पे काम करना है. आई हैव टू वर्क ऑन योर टोटल बॉडी कॉम्पोजिशन एंड आई हैव टू इंट्रोड्यूस फूड्स विच इंक्लूड मैग्नीशियम. जी हाँ, मुझे मैग्नीशियम ऐड करना है, मुझे बायोटिन ऐड करना है. तो दे अंडरस्टैंड दैट आवर टीम, back end is only making those additions and calculating a very complex calculation and giving the diets to you which are very very fun and easy to do. है ना? किसी को थोड़ी ना बोल सकता है कि भाई आज मेड नहीं आई है तो बाहर से ऑर्डर मत करो. We have to allow that part, right? We cannot cook 7 meals 7 times and सबको ज्यादा खाना खाना है भाई. Everybody is a little more hungry always when they are at home. So that is what I think it's just get a little common sense, like you explained earlier, that a little bit of common sense and a little bit of just kind of making it a habit. I think we just forget. We get carried away. We forget. I mean, हमको क्या या हमको क्या लगता है पता है कि रात को ना वो क्रीमी यमी हॉट चॉकलेट खा के
हमारा भला हो जाएगा. Like I'm too stressed today. Today is Friday night, okay? So today is going to be my wine night, or today is going to be my chocolate night, or today I'm going to have a big mug of hot chocolate. But यार उसी को अगर आप moon milk पियो ना, instead of that, if you go and have moon milk, that is going to do. See, moon milk has come here. Yeah, it has come even on your comments. So, you know, instead of that, if you have these kind of things, people think that, I mean, I feel amazing after eating an apple. You have to just program your brain and understand कि यार वो चॉकलेट खाने के बाद तो I feel miserable, you know. I feel पहले तो गिल्ट आता है, अरे यार इतना सारा कैसे खा लिया. Chocolates you feel, but it gets you more depressed. Correct. You feel it's a feel factor, but it's not, because the downer is very bad after that. ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता. लेकिन गूगल ने बोला है डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, है ना. तो हम सब गूगल पढ़ेंगे, लेकिन गूगल ने ये नहीं बोला कि लिंट वाली डार्क चॉकलेट अलाउड नहीं है. वो लिंट वाली डार्क चॉकलेट जिसमें शुगर है, जिसमें इतना सारा फैट है, नहीं. वो हमारी चॉकलेट वो बोल रहे हैं जो कोको बीन्स को प्रोसेस करके सबसे पहला लॉट बनता है. एक्सट्रीमली डार्क, बिटर, विदाउट मिल्क सॉलिड्स, विदाउट फैट एंड विदाउट शुगर. गूगल इज टेलिंग यू अबाउट दैट. Google is not telling you to buy Lindt 70% and eat. है ना? Okay, so the next question that I have, so we have a couple of them actually. So Greek yogurt, how is the entire Greek yogurt concept different from the homemade yogurt? Oh. And then second one after that, I'm just getting two questions together because they're both food related. And the entire ABC juice, how good is that for immunity, and how is that different from the other juices, and what is actually the ABC juice funda as well? Superb. हम लोग ग्रीक योगर्ट की बात करेंगे, हम लोग ABC जूस की बात करेंगे, और उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आया था which was asking us कि आप शुगर की कैलोरीज के बारे में बात कर रहे हो तो नेचुरल स्वीटनर कौन सा है, ठीक है ना. सो अब करते हैं हम बात अबाउट ग्रीक योगर्ट. ग्रीक योगर्ट एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नॉट इंडियन. ओके, सबसे पहले तो हमें ना हर इंटरनेशनल चीज से बहुत प्यार हो जाता है. किनोआ में इतना स्पेशल क्या है, मतलब कम ऑन यार. यू नो, चिया सीड्स ऑल्सो वहां लोकली ग्रो होती है. हम मार्केटिंग नहीं कर पाते. हम हमारा बाजरा को भी एक फैंसी नेम देते थे, पर्ल मिलेट, और हम उसको बेचना चालू करें, यार इंडिया विल बिकम अ मल्टी मिलियनर. Avocados also, they are extreme high fat food. Okay, you cannot, the way they spread avocado, okay, we cannot do that. Their climate is different, their metabolism is different. वहाँ locally grow होता है. But you see them, Khyati, even an average person who's at 70 is fit out there. That 70-year-old uncle is also running every day. Like, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है, यू नो. वहाँ का जो कल्चर है ना, वो कल्चर में I don't think my dad even walks to precisely that is a problem of our culture. हमारे कल्चर में जब हम बड़े हो रहे थे ना, खेलने जाना है, पढ़ाई कौन करेगा, यू नो, why do you want to go out? So हमारे कल्चर में पहले तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी नहीं. हमारे कल्चर में दूसरी चीज है जो बाहर नहीं है, वो है रिक्शा, ऑटो. Every state in India has their own fun particular auto, है ना. So these two things have led to a lot, these two things have led to a lot of reduction in walking. जबकि हम जाते थे, whenever we used to go, or we still go, or we would hopefully go to our holidays, तब हमको पता चलेगा, है ना. हॉलीडेज में जब जाएंगे ना, हाँ, हॉलीडेज में जब हम जाएंगे, are you there? Yeah, can I talk? You're good. Are you there? I couldn't hear. Just connect. Yeah. Better now. Yeah. No, I'm just checking internet connect. I couldn't hear you clearly, so I was just hoping the internet is good as you're talking, because I don't want the audience to miss. हाँ. So I was talking about how we go on a holiday, and जब हम holiday पे जाते हैं, हम easily 20,000 25,000 steps कर लेते हैं. लेकिन अगर आप सिटी में हो, या अगर आप अपने होम टाउन में हो, तो आप 5,000 steps भी नहीं कर पाओगे, thanks to the rickshaw culture, thanks to the cycle वाला culture, auto culture, all of that. So Indians by default are a little, I would say, a little lazier and unhealthier. तो हमारा खाना भी बिल्कुल वैसा ही था. हमारे खाने में फैट सिर्फ घी से आता था. ओके, हम कभी चीज नहीं खाए थे,
पनीर ऑल्सो इज अ नॉर्थ इंडियन कॉन्सेप्ट. नॉर्थ इंडिया की ठंड, हिमालय वाली ठंड, राइट. साउथ इंडियन डिश में कभी पनीर नहीं होता, वो तो हमने सब मिक्स विक्स कर दिया है, isn't it? So these are the extra additional fats that we have added in our diet knowingly or unknowingly, and अब हम किनोआ खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है ना. सो ग्रीक योगर्ट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, बट आई लाइक प्लेन ग्रीक योगर्ट अनफ्लेवर्ड बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन. हम एज इट इज प्रोटीन के लिए थोड़े, एक टिपिकल इंडियन डाइट जो होती है ना, वो फैट में थोड़ी हाई होती है और कार्ब रिच होती है. अगर आपकी एक रेगुलर प्लेट ले तो इट इज रोटी, इट इज मोस्ट ऑफ देम हैव 2 cereals, ओके, रोटी राइस, ओके, खिचड़ी एंड पराठा. मोस्ट ऑफ अस हैव 2 things, राइट. तो हमारा डबल कार्ब वहां हो गया. हमारे कल्चर में आलू भी बहुत काम आता है, तो वो हुआ हमारा 3rd कार्ब, राइट. सो वी आर हैविंग 2 to 3 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन वन थाली. एंड हमारी दाल एक ही होती है, छोटी सी होती है. हमारा दही होता है छोटा सा. सो बाय नेचर हम एक लो प्रोटीन डाइट और हाई कार्ब डाइट खाते हैं, जिसमें सैलेड तो ऐसे कलर देने के लिए छोटा सा, लाइक चटनी एंड सैलेड आर सेम स्पून व्हेन यू गो टू ईट अ थाली, राइट. आई टेल हिम क्यों इतनी चटनी एंड सैलेड सेम नहीं है, थोड़ा ज्यादा. सो देन दे लुक एट मी के सस्ता सैलेड खा रही है, व्हाई इजंट शी नॉट ईटिंग द श्रीखंड और समथिंग वेरी हेवी दैट वी आर. सो सी आवर स्वीट्स ऑल्सो आर वेरी कार्ब रिच. सो दैट इज आवर प्रॉब्लम, ओके. हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन बढ़ाना है बाय हुक और क्रुक ऑफ एनीवन, ठीक है. तो आई लाइक इट. हाँ, कर्ड एंड योगर्ट में डिफरेंस है श्रेया. कर्ड इज समथिंग दैट यू सेट एट होम, इट्स अ रेगुलर दही. योगर्ट जो है थोड़ा सा प्रोसेस्ड होता है, उसमें थोड़े से हमारे माइक्रोब्स कम होते हैं. जो फर्मेंटेशन होता है ना, कर्ड दूसरे दिन खट्टा हो जाता है, योगर्ट नहीं होगा. योगर्ट में वो बैक्टीरिया थोड़े कम होते हैं. और ग्रीक योगर्ट में जो मिल्क है वो मिल्क सॉलिड ज्यादा होता है, विच विल गिव यू अ हायर प्रोटीन कॉन्टेंट than your normal dahi. So I include Greek yogurt to those who can afford it, और plain वाला, okay. Flavored Greek yogurt नहीं खाना, वो श्रीखंड and flavored Greek yogurt are same. तो don't eat your flavored Greek yogurts, just make sure you are eating a plain Greek yogurt. अब आई बात आपके ABC जूस की. ABC is apple, beetroot and carrot. These 3 juices, these 3 ingredients are put in a juice and then they, are squeezed out. But in my case, I am somebody who dislikes any kind of juices because, अगर जूस ही पीना है तो आपने क्या किया पता है, आपने सबसे worst part of your फ्रूट का सबसे गंदा पार्ट है जो शुगर्स और वाटर, वो ले लिया और सबसे अच्छा पार्ट है वो पूरा फेंक दिया. सो यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दैट. अगर मैं होती तो मैं वो जूस फेंक देती और मैं वो जो पड़ा हुआ नीचे का आपका जूस में से निकला हुआ जो होगा वो लेके मैं उसके पराठे बना देती. I would do that. I would make a paratha out of that remnants, ठीक है ना. Now we have a couple of questions here about sweetener, है ना. Lot of people think that अगर आप diabetic हो तो you can take a sweetener, ठीक है ना. और वो स्वीटनर आपको that sweetener is going to make your life little better and a little easier, but ऐसा नहीं है. कोई भी स्वीटनर जो होगा वो स्वीटनर अपने साइड इफेक्ट्स लेके आता है. आपको पता है कोक जीरो जो है, एंड कोक जीरो कैलोरीज, डाइट, पेप्सी, नो वन इज हैप्पी आफ्टर ड्रिंकिंग देम, ओके, बिकॉज दैट क्रेविंग जो होती है, वो क्रेविंग, करेक्ट, वो क्रेविंग, करेक्ट, उसमें 0 शुगर्स है लेकिन उसमें अस्पार्टेम है. Oh. I do land up having a diet because when you're eating something, you necessarily get that craving. But I also like think it's a diet, but actually, honestly, it's really not good. But yeah, we all tend to. That's what I'm saying. We know it at the back of the head that's not good, but we still tend to consume it. See, good और bad जो है ना, हम सबको पता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ओके. लेकिन instead of a dietitian telling you ये मत खाओ, एक dietitian को ये बताना चाहिए कि ये कितना खाओ. At Balanced Nutrition, we do only that. We have a proper restaurant guide, पता है. That restaurant guide today is 64 pages. अगर so we have Indians all over the world who are our clients. So we have only 18 clients, 18 clients in Assam. ठीक है ना. हमारे पास Assamese cuisine है. We have about 800 clients in the Middle East. तो हमारे पास Lebanese है, ओके. हमारे पास सारे इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स है, हमारे पास सारे सुपरमार्केट्स है आउट ऑफ इंडिया के भी, जहां हम उनको कहते हैं ठीक है आप ये खा लो.
ओके, सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गए वो दिन जब डाइटिशियन आपको एक डाइट चार्ट देती थी, वो डाइट चार्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता गाइस. आपको ऐसा डाइट चार्ट चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आपका पिज्जा कैसे बैलेंस करना है. अगर आज आप रात को ड्रिंक करने ही वाले हो, मैं नहीं बोल सकती ड्रिंक बंद करो, वो तो गूगल पे फ्री में मिल जाएगा. मुझे आपको ये बताना है कि आपको एक अल्कोहल गाइड लगेगी, वो अल्कोहल गाइड में आप इतना अल्कोहल पियो, उस अल्कोहल में आपको जो चखना डालना है वो ये चखना होगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दैट इज कॉल्ड एज अ डाइट प्लान. अदरवाइज द डाइट चार्ट दैट यू गेट. Correct, correct, correct. So you have it, but you just kind of make it healthier. precisely, You're making it healthier. precisely, Yeah. just balance it out. क्योंकि लाइफ में कभी भी जितना रिस्ट्रिक्शन, अगर if suppose if I'm like for the award, so if I knew that I won it and I want to look the best and I want to look sexy, और मैंने अपने आप को बताया चल 20 दिन पड़े हैं ना, I got to know 20 days ago, अब मुझे लगा नहीं मुझे ना ये वाला एंगल ये, so नहीं यार, मैंने अपने आप को कहा मैं कोई स्वीट नहीं खाऊंगी. वो वीक मैंने सबसे ज्यादा खाया, अदरवाइज नोइंग मी मैं कभी स्वीट टच नहीं करती. बट बिकॉज आई रिस्ट्रिक्टेड माई माइंड, okay, it became rebellious, right? It's the human nature. You just tend to be rebellious without knowing that Yes. you're rebellious. Yes. You tend to get rebellious with your food. so मुझे ना ऐसे पूछते, मेरी चाय तो नहीं निकालेगी ना डाइट से, अब मैं तेरा डाइट प्लान लूंगी. और दे आस्क माई टीम ऑल्सो दैट मेरी चाय मत निकालो या मेरी कॉफी मत निकालो. आई एम लाइक चाय क्यों निकालेंगे? why would we remove your tea? A cup of tea is 80 calories. And then if I make it masala tea, it's superb. So why remove that 1 cup चाय? हाँ 10 कप चाय पी रहे हो तुम, मेरी बात हो कुछ आपसे, बट जो है वो है. And coming to the juice. Yes, I cleared it. You were hazy, so I cleared the juice. Hazy and internet. Yeah, I think my internet was hazy, so I was just getting that sorted. हाँ, जूस वाला हो गया है. Coming to the next one. हमारा sweeteners as much as possible, try and avoid them. Sure, but I think you already addressed that very well in the conversation. This is a very important one. That how does one manage a routine? The odd sleeping hours or the binging, or even someone has said intermittent fasting. So I'm just bringing that also so you can address both together, because I think we had a viewer who did mention about intermittent fasting. जी. So how is that a good routine to maintain? And Hi, otherwise, Mama. how to maintain a routine that's like जी हाँ, सोनल ग्रीक योगर्ट घर पे नहीं बना सकते हम. एंड नीमा डाइट चार्ट फॉर थायराइड आपको सजेस्ट करती हूँ बाद में, ठीक है ना. हाय राहुल, हाय यश, हाउ आर यू? कैन वी गेट अ डायबिटिक डाइट? उसके लिए मुझे यश आपकी शुगर्स लगेगी और बहुत सारी और चीजें भी. आप असेसमेंट भरो, और हमने प्रोग्राम के बारे में 3 महीने से बात कर ली है, ठीक है ना. सो यश, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू वर्क ऑन योर शुगर्स. नाउ कम्स द क्वेश्चन which we were waiting and everyone was waiting to hear. पहले वाला कौन सा लूं बताओ? I think I'm stuck on Instagram. Yeah, I'm stuck. Yeah. हाँ. I'm stuck. Yeah, I think I'm better. I'm back. अभी हम बात करते हैं एक रूटीन सेट. हाँ, एक रूटीन की बात करते हैं, ठीक है ना. अभी के लिए हमारी कोई रूटीन है. नाउ सी, ऑफिसेज आर ओपनिंग, तो इतना खराब नहीं है, ठीक है ना. मोस्ट ऑफ अस आर सेटलिंग इनटू सम काइंड ऑफ रूटीन, बट हमारे बच्चे घर पे है, ठीक है ना, हमारे टीनेजर्स घर पे है, तो हमारा रूटीन थोड़ा बिगड़ता ही है. बट अगर मैं आपको बताऊं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ 2 थिंग्स इन योर लाइफ, रादर आई वुड से 3 थिंग्स इन योर लाइफ. 1 इज व्हाट यू ईट, ऑफ कोर्स, ठीक है ना. उतना ही जरूरी है about your sleep. I think I'm become dark, I don't know how, but उतना ही जरूरी है सोना, ठीक है ना. अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हो और अगर आपकी स्लीप इरेटिक है, it will start from fat gain, acidity, constipation. It will start from giving you burps and you will end up having thyroid, diabetes, stress. तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है, अगर मुझे वर्कआउट करना है या मुझे वो एक एक्स्ट्रा घंटा सोना है, आई विल स्लीप इफ माई स्लीप इज नॉट डन वेल. स्लीप इज दैट इम्पॉर्टेंट. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर वर्कआउट. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट वेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग वेर यू वुड मेक सम मनी. Okay, so I would choose sleep in any case because, and the third part is your hydration and your breathing. Okay, if most of us I see we are not even We breathing. underestimate that. We Hum- just don't give those things importance. The Yeah. breathing. We just don't give breathing importance
आती है. I think we You know? should speak about that. Yeah. So most of us, our breaths are half. We don't even take one single deep breath and lay it out. और वो single deep breath अगर नहीं लिया हमने, I mean, what is yoga? Why people 2 generations back lived till 80-85, and why are we all conking off at 68-75? Okay, it was all because of a static practice of something yoga, which was also breathing. हर योगा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू होता है. तो मैं योगा, आई एम नॉट सेइंग गो एंड डू योगा बिकॉज एवरीवन विल से मेरे पास टाइम नहीं है. अरे बट ब्रीदिंग का तो टाइम है ना. दैट्स अ पैसिव एक्टिविटी यू आर डूइंग, राइट? सो ब्रीद वेल. मोस्ट ऑफ अस, हमारा सबका एक प्रॉब्लम है लाइफ में, पता है क्या? हम लोगों को थर्स्ट और हंगर के बीच की समझ हमारी पूरी ब्लर हो गई है. ओके, अभी right now I'm talking a lot. I am thirsty, isn't it? I have this bottle in front of me. Most of us don't. है ना? हम अपनी थर्स्ट को इतना इग्नोर, अभी आपको प्यास लगी है, ओके, आप उसको इग्नोर करो. आप टीवी भी देख रहे हो ना, तो भी आप इग्नोर करोगे. बाद वो थर्स्ट आपकी हंगर बन जाएगी. बिकॉज योर थर्स्ट सेंटर, यू हैव नॉट लिसन टू इट, तो दैट थर्स्ट सेंटर इज बिकमिंग डल. तो आपका थर्स्ट जब आ रहा है, आएगा ही नहीं. और आपको पता है, अगेन, लेस वाटर इन द बॉडी लीड्स टू द सेम थिंग्स आई टोल्ड यू अबाउट स्लीप. अगर आप अच्छे से सोगे नहीं तो भी आपके यही प्रॉब्लम सारे शुरू हो जाएंगे. सो ऑल इन ऑल यू हैव टू जस्ट मेक श्योर that these are the important points. First, eat practical. Okay, if you are somebody working in a night shift, I cannot tell you कि आप 11 बजे मत खाओ, 12 बजे मत खाओ. You start by eating 1 hour before you're going to bed. Slowly make it 1.5 hour before you're going to bed. Let's get practical. ठीक है ना? Let's not look at any textbook weight loss methods. Let's not look at any इम्प्रैक्टिकल वेज. जैसे आप बोल रहे थे ना कि बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है डाइट पे आना. सो अगर आज मुझे थम्स अप पीनी है ना, लाइक नाउ पतिदेव लिव्स नो टुगेदर. So he's like, यार तू see you just had a bite of chocolate, and how are you still not gaining? और मैं देख यार, and he's a 4-pack guy, like, तो अभी वो लॉकडाउन की वजह से 4 का 3 हुआ because he was eating. तो he was like, तू खाती है, तेरे को कुछ नहीं होता, मैं खाता हूँ, हो जाता है. I'm like, ऐसा नहीं है. I know when to stop. अगर आइसक्रीम है तो I know that I have to stop at 1 or 2. I think also learn that when to stop. Correct. तो एक 2-bite rule है मेरा, golden rule, which we say 2-bite rule. You know what? I'll tell you. अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है ना, और अगर गुलाब जामुन फ्रिज में है, आपको उसे गर्म करके खाना है. अगर आपका गुलाब जामुन is this size, if I have to cut it now, अपना कट है, I take 2 bites of this. I tell you, I feel blissful. I can enjoy the flavor of that gulab jamun. मेरी craving भी चली गई. अब आप ये 1-2 स्पून को अगर आप 2 गुलाब जामुन खाओगे ना, within 20 minutes आपको एक बर्प आएगा, क्योंकि आपने ज्यादा कर लिया, आपने ऑलरेडी ज्यादा खा लिया. ठीक है ना? एक्सेस घी, एक्सेस शुगर, मैदा, रवा, all that and मावा, that all is gone in. So you will feel uneasy. फिर रात को आप कंप्लेन करोगे मुझे एसिडिटी हो गई. अरे जो चीज इतनी अच्छे से हम एंजॉय कर सकते थे, जो हमारी वेस्ट पे भी नहीं आता, हमारी नींद भी ट्रबल नहीं करता, और आपने ज्यादा खा के हो गया. Imagine eating a whole pastry. It starts tasting black, Eat 2 bites of your pastry and being bliss. Sweetness after a point. Excessively, correct. Get nausea after eating too much chocolate, or like I get a migraine. Correct. Yes. When I know I'm excessively doing it, it just hits my I head. ask, It yeah. becomes a migraine. मैं अपने सारे माइग्रेन क्लाइंट्स को पूछती हूँ कि लास्ट 2-3 दिन में कोई ज्यादा मीठा हो गया क्या? I ask them. Yes. So someone has asked a very good question. Can you suggest remedies for non-alcoholic fatty liver? Yes. Unless you want to take that personally later, or if you want to just brief us and then maybe Vishal can yes. personally in Fatty, detail about जी. this. Fatty liver जो चीज है ना, fatty liver is the first step. Now, why is liver so important? As an organ, liver को second heart कहते हैं. It's that important. आपका सारा डाइजेशन, आपका सारा ब्रेकडाउन लिवर केमिकल्स भेजता है. लिवर सेंस प्रोटीन डाइजेस्टिंग और प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स, ये सारा काम लिवर करता है. ओके, लिवर इज सिचुएटेड इन योर एब्डोमिनल कैविटी. हाय रविंदर जी, हाय एवरीवन.
आपके एब्डोमिनल कैविटी में वो लिवर पड़ा बैठा है. ऑल राइट. Every organ, if you don't make a big deal out of it, every organ starts developing a layer of fat. ये layer of fat liver में अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 कहते हैं. Okay? Alcohol consumption and chronic alcoholics get alcoholic liver disease or alcoholic fatty liver. नॉन अल्कोहल मतलब जो हमारे लाइफस्टाइल वाले हैं या जो बहुत मोटे हैं, ओके, वो लोगों को आ जाता है अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. फैटी लिवर की डाइट जो होती है वो काफी पर्सनलाइज्ड होती है. इट इज नॉट समथिंग दैट लाइक अ वेट लॉस डाइट आई कैन गिव यू क्विक ऑप्शंस. सो इफ देर इज एनीथिंग दैट आई नीड टू नो अबाउट फैटी लिवर, आई नीड टू नो योर SGPT, SGOT levels, I need to know a lot more things before I can even say anything to you. But I hope everyone has understood फैटी लिवर क्या है. बट हाँ, फैटी लिवर होता ही है और अगर वो grade 4 हो गया तो इट इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. मोस्ट ऑफ इट इज अल्कोहल और योर फूड चॉइसेस. So now, tell us something like what are the worst lifestyle habits? Like what are the worst, like what do you say that these are what ABC things that I really think you should not do and everyone does it, like the worst lifestyle habits? सबसे पहला वर्स्ट लाइफस्टाइल हैबिट है चाय के साथ बिस्किट लेना. हमारे 6 महीने के बच्चे को पता है पार्ले जी और मिल्क वीनिंग फूड था हमारे लिए. पार्ले जी एंड मिल्क. It's the worst. I have done that to my daughter. Guilty as charged. Oh, she's not eating today. She can just give a few parle please and milk. And then you will be like, क्यों हेल्दी नहीं खाती है, क्यों मीट, अरे आपने ही उसको टेस्ट दे दिया बिस्किट का. How will she learn and eat anything healthy later, isn't it? So now let me tell you why biscuit with chai is the worst habit. Chai is a fantastic habit. Okay guys, बिस्किट बनती किससे है पता है? मैदा. ओके, उसमें फैट कौन सा होता है पता है? मार्जरीन होता है. मार्जरीन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ फैट. पता है आपको? ट्रांस फैट फ्री लिख के आ रहा है आजकल. द ट्रांस फैट विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग योर आर्टरीज. बिस्किट्स इन इंडिया, आई एम नॉट अवेयर इवन इफ द मोस्ट हेल्दियर बिस्किट्स जो आप लोग बोलते हो ना, अरे ये तो हेल्दी है, ये तो मैं खाऊंगा, नहीं. Any biscuit to become a biscuit needs margarine, okay? And margarine is the worst form of fat that you are having. आप भले अच्छे में अच्छी डाइट करो, अगर आप चाय के साथ रोज 2 बिस्किट ले रहे हो दिन में 2 बार, तो आपकी दिन की 4 बिस्किट हो गई. अगर आप ये 1 महीना कर रहे हो तो आप 120 बिस्किट खा रहे हो. है ना? एक छोटी सी आर्टरी ब्लॉक हो गई हमारी. Okay, seriously, and we're having it for years, 12 months. Yeah, they say that the first foundation of heart disease is laid at the age of 12. Oh. Then the worst, maida. That's Maida, that's correct. very scary. Yes. It's like an alarm we need to address too, yeah. So it's not only मोटापा that a dietitian has to talk about, है ना? उसके बाद सबसे अलार्मिंग बात है कि the amount of sugar in it, you know, it's killing. ठीक है ना? सो ये एक सबसे वर्स्ट लाइफस्टाइल हैबिट है ये चाय के साथ. यार डेली मत खाओ. आई नो व्हाट शुड वी ईट विद टी देन? मैं बताऊं क्या? आई लव माई खाखरा विद टी. ओके, आई लव इंडिया में ब्रेड भी एक बहुत बड़ा जोक है. ब्राउन ब्रेड भी मैदा ही होता है 80%. लेकिन हाँ, नाउ यू हैव दीज सुपर इवन इन द tier 2 cities, you know, you have these very nice bakeries, very nice supermarkets. एक अच्छा सा ब्रेड लो, और अगर आपको खाना ही है ना तो पता है घर में भी, घर में नहीं लेकिन एक जैम होता है जो प्रिजर्व कहते हैं उसे. इट्स नॉट अ जैम, इट हैज फ्रूट पीसेज इन इट. सो इट हैज एनी स्प्रेड दैट यू लाइक. ठीक है ना? सो वो वाला स्प्रेड अगर आप डाल के वो टोस्ट खाओ तो भी चलेगा. आप खाखरा खाओ. मुझे जब चाट की क्रेविंग आती है तो मैं खाखरा पिज्जा बनाती हूँ. ओके, और अगर मुझे आज मीठा खाना है कुछ तो मैं उसमें मीठा चटनी स्प्रेड करती हूँ, थोड़ा सा तीखा चटनी. मैं अपना खाखरा पिज्जा खुद बना के खाती हूँ. सो दैट इज समथिंग. हाँ नहीं पारुल, ओट्स बिस्किट भी, बिस्किट बनाने के लिए उसे मार्जरीन डालना पड़ता है. ठीक है ना? सो आपको नहीं करना है वो. सो दीज आर द ऑप्शंस आर मखाना. अच्छा, बिस्किट मतलब कुकी भी आया उसमें. ओके, एंड खारी बिस्किट भी आ गया और आपका टोस्ट भी आ गया. ठीक है ना? तो बोलना नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम मैं तो टोस्ट खाया, वो डिप वाला बटर, वो गोल ऑल ऑफ देम.
ठीक है ना, टू बेक एंड टू ब्रिंग दैट कंसिस्टेंसी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इनफैक्ट what I should do as a parting note, you know, I should give you all, आप लोग सब ना अपना आइडियल वेट चेक करो, ठीक है ना, अपना BMI चेक करो और आप क्या ग्रेड के ओबेसिटी में हो वो चेक करो. अभी यहाँ एक हेल्थ स्कोर लिंक मुझे दिख रहा है, बट कैन यू ऑल्सो पुट इट ऑन इंस्टाग्राम फॉर यू नो द व्यूअर्स हियर. आई थिंक वी शुड, है ना. So what we should do is, yeah, we are sending you a link here in the comment section. ठीक है ना. ज़ैनब ब्राउन ब्रेड भी नहीं, इट्स नॉट ओके. या रोटी इज परफेक्ट, थेपला इज परफेक्ट इफ यू आर अ गुजराती, इट्स अमेजिंग. तेल थोड़ा कम डालना बस, है ना. परफेक्ट. ओके, कैन यू प्लीज टॉक अबाउट वाटर रिटेंशन? श्योर. ओके. Khari is very bad. She just said, sorry, this Meena Khari is the same as the cookie and the biscuit and the dough, the butter toast, all of that. Yes. The same family. Yes. सरियू, होममेड ओट्स कुकी में भी आप जो पीनट बटर डाल रहे हो ना, that also has extreme amounts of fat. So whether I add a little oats in it or whether I add a little ragi in it to feel good, आपका काम नहीं होने वाला. Then people are talking, मुझे वाटर रिटेंशन के बारे में बात करनी है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन आप सुनो, ठीक है ना. वाटर रिटेंशन होता क्यों है? वाटर रिटेंशन जनरली होता है ये लड़कियों में या विमेन में हु आर फैट और हु हैव अ हाई फैट परसेंटेज. एक लड़की भले 55 की हो लेकिन चब्बी चब्बी दिखती है. सी, लुक एट दिस. ओके, लाइक यू नो दे लुक वेरी चब्बी. वजन कुछ भी हो, मतलब उनमें बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज है. यस, अब सबको पता करना है तो कर लो. मेरा फैट 29 है. जब मैंने शुरू करा था 43% था, अब 29 है. 24% पे ला के रहूंगी, ठीक है ना. सो इवन दो आई एम 55 kgs, पीपल फील दैट वाओ शी लुक्स सो हेल्दी, बट ऐसा नहीं है. मुझे उसको कम लाना ही है. ऑलराइट, अब मैं बात करती हूँ वाटर रिटेंशन के बारे में. वाटर रिटेंशन हैपेंस व्हाई? आप है ना एक आपकी बॉडी में जो फैट है, ठीक है, वो फैट बिकम्स द मेन रीजन फॉर वाटर रिटेंशन. द कॉन्सेप्ट इज दैट किडनीज जो हमारी है वो किडनीज है जो हमको हेल्प करती है यूरिनेशन में, ठीक है ना. तो वो एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस शुगर्स, करेक्ट, वो एक्सेस सॉल्ट और शुगर आपका फेंक देती है. ऑल राइट. सो व्हेन द एक्सेस सॉल्ट एंड व्हेन द एक्सेस शुगर्स आर सपोज टू कम आउट, बट बिकॉज ऑफ योर हाई फैट परसेंटेज, फैट इज लाइक कॉटन. रिलेट करो, हाँ, आपका फैट जो है ना वो आपका कॉटन है, आप जिससे गद्दी बनाते हो, ठीक है ना. आप समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हो? क्योंकि आपको तब थोड़ा आपका पसीना सोखना है. तो फैट का और कॉटन का फंक्शन एक ही है, मॉइस्चर रिटेन करो, वाटर को रिटेन करो, ठीक है ना. तो यहाँ फैट रिटेन कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है पानी आपकी बॉडी का. ओके, लेकिन वो फैट अकेले नहीं कर सकता. इट नीड्स आइदर सॉल्ट और इट नीड्स शुगर. इसीलिए कभी कभी आपको क्रेविंग होगी सॉल्टी की और कभी कभी क्रेविंग होगी शुगर की. अचार बनाते हो, जैम बनाते हो, वो भी तो वाटर रिटेन करता है ना. सॉफ्ट सॉफ्ट होता है आपका अचार, आपका जैम जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, आपकी केक्स में जो मॉइस्चर होता है वो शुगर की वजह से होता है ना. सो आपका फैट ऐसे ही होता है. दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है ना. आपकी ब्लोटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादा फैट है और बिकॉज ऑफ दैट फैट बॉडी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, कि मेरे को ये पानी फेंकना है कि मेरे को ये पानी रखना है. ओके, और आपको ये क्रेविंग्स होती रहती है. ऑलराइट. सो आपको ये जानना है कि ये क्रेविंग्स का, लेकिन उसका रीजन क्या? अभी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, सब टेम्पररी है. उसकी एक ही रेमेडी है, लूज द फैट. So if you're 55 kgs and if you're still bloating, if you are thin and you're still bloating, okay, आपका फैट कम करो. और अगर आपको लगता है कि आप ब्लोटिंग इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपका हार्मोनल प्रोफाइल ऊपर नीचे है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. हार्मोनल प्रोफाइल भी ऊपर नीचे इसीलिए हो रहा है क्योंकि फैट है. अगर ये मेरा, दिस इज माई आर्म, लुक हाउ इट्स रोमिंग अराउंड, राइट. सी, मेरा आर्म देखो, है ना, इट्स टोटली रोमिंग अराउंड. अब मैं यहाँ पे एक लेयर फैट डाल देती हूँ. See, movement restrict हुई ना. Suppose if this is the fat, isn't the movement restricted? Isn't it? See, so fat ऐसे करता है. Okay, fat movement को restrict करता है. So आपके organ के ऊपर अगर fat आ गया तो आपके hormone produce नहीं होंगे. So the whole situation here is fat. ठीक है ना? I think as a mentality, we need to understand the fat percentage instead of the losing weight. I think the priority has to be right amount of
carbohydrates, but we still forget that the fat part, you know, about. करेक्ट. इसीलिए कैलाश भावना, हाँ, एक बार फिर से वो हेल्थ स्कोर का लिंक डालो. गाइस, टेक दिस टेस्ट. आप लोगों का बॉडी फैट इनडायरेक्टली भी हमको पता चल जाएगा और हम आपको आपका पूरा रिपोर्ट ईमेल पे भेज देंगे. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग दैट फैट परसेंटेज. That would be super. I think everyone should take, guys. Everyone should take this test, and I'm sure they will help you out. Balanced nutrition is very. I've been personally talking to Kathy and the team, and they have been really very helpful. And they've been like you know, literally like the things I can. And I forget which company you was. I think it's a fabulous team. Thank very you, approachable. thank you. And Kathy is also very very fun nutrition to have around. हाँ, To thank you. stop you from what you want to eat and crave. बिकॉज खुद ने करा है ना. नाउ सी दिस. ओके, आरती इज आस्किंग अ लवली क्वेश्चन. वो बोल रही है कि आइडियल फैट परसेंटेज, फैट रेंज क्या है फॉर फीमेल्स. फॉर फीमेल्स आइडियल फैट रेंज, अगर आप एथलीट हो ना, तो आपको, अगर आप अब्रॉड कोई एथलीट हो, इफ यू आर इन एनी नेशनल टीम ऑफ एनी कंट्री अब्रॉड, आपका फैट परसेंटेज, आरती, दे विल कीप इट एट 9%. There are cricketers in Australia whose fat percentage is 7. मतलब just imagine क्या लगते होंगे और क्या हेल्थ होगी. लेकिन हमारे आपके बीच में 20 और 25 के बीच में, इसीलिए तो मेरा फिगर 24 है ना. आई वॉन्ट टू रीच 24. सो 20 और 25% के बीच में अगर हमारा फैट परसेंटेज हो तो इट्स परफेक्ट. ठीक है ना. Actually, you know, our offices are shut ना, तो and we are not asking for visitors to come, but हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सी मशीन है which also makes sure that you know. हाँ, जिग्नाशा दोषी जी, explain well but then do something about it. बराबर ने. Now Zainab is saying that can we reduce organ fat with proper diet? Zainab, you can reduce organ fat only with proper diet. कोई और तरीका नहीं है. You know, nothing else. So, Kathy, I think we have pretty much addressed all the questions. जी, and I don't we think have. there are any more coming in case nothing more coming in. So far, we have addressed whatever we've Yes, had. yes, and yes. Guys, and she's been, I think you've really explained it well. It's been a very fun listening. Like, I'm just like, it's so nice to hear you say the problems and just give solutions in a very fun way, which is very important because, you know, when you get a person scared and paranoid and say, ye mat karo, wo mat karo, like you said, you know, you tend to be like, हाँ, ये तो it's not possible, ये कैसे होगा? Sure. But yes, thank you so much. And if anyone, any of the viewers, if you all want to, please connect with her later. Just go ahead. I will also be posting this. I'm going to be making an whole IGTV out of this. So what we are, entire session. what I have is मेरे को Facebook पे बहुत सारे questions है. So if any of your viewers want to log into Facebook, let me put, I will ask my team to put a Facebook video link here in the comments. They can join me there. ठीक है ना? I'm giving the video to the team. I'm already Sure. giving the video to the team. Bye. Yeah, and thank you so much. Thank you. Happy weekend. Same to you. Drink sensibly, like she said. Have a great time. Thank you so much. Now, there are a lot of questions that I have here which are going to be something that I need to address. Somebody is asking me how, what, and you know, the question here is is Threptin biscuit? Okay, Threptin biscuit is a very high protein biscuit. ठीक है ना? तो वो high protein biscuit जो है आपको खानी है तो खा लीजिए. Next question that I have is, can you please tell us natural liver detox remedies? हर्षा, ये natural liver detox जो होता है ना, many of them are doing a lot of क्या कहते हैं, काफ़ी सारा मार्केट में अवेलेबल है चीज़ें इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ जूस. सबको तो करेला जूस ले लो, करेला जूस लेके आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ओके, लिवर डिटॉक्स इज अ प्रोसेस जस्ट लाइक ब्रीदिंग. आपको हर दिन आपके लिवर का ध्यान रखना है. यू हैव टू मेक श्योर आप बहुत सारा फ्रूट, फाइबर और वेजिटेबल्स करो ऐड. इन माई डाइट्स यू विल सी अ लॉट ऑफ व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मेथी, सारा नेचुरल चीजें खाओ. स्टे अवे फ्रॉम प्रिजर्व्ड एंड पैकेज्ड फूड्स. मैं नहीं कहती बंद कर दो, लेकिन जितना हो सके उतना कम कर दीजिए. अमीशा जी पूछ रही है, माई बॉडी में मैम बॉडी में वाटर अमाउंट कितना होना चाहिए? अमीशा, वो हर बंदे के लिए अलग होना चाहिए. बट हाँ, अगर आप हेल्दी हो, अगर आप फिट हो, अगर आपको वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है तो आप सही चल रहे हो. ठीक है ना? लीना बोल रही है, आई गेट ब्लोटेड इन माई पीरियड्स एज इफ आई एम प्रेग्नेंट. लीना, इसका मतलब ये है कि
जो आपका ड्यूरिंग योर पीरियड्स देर इज एन एंटायर साइकिल ऑफ हॉर्मोन्स फॉर 28 डेज दैट गोज ऑन, ठीक है ना। तो वो 28 डेज की जो आपकी साइकिल होती है ना, उसमें आपका हार्मोन ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है बाय टेक्स्ट बुक। लेकिन अगर वो हार्मोन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस एंड दिस इन 28 डेज, इफ इट्स गोइंग लाइक दिस एंड दिस, तब आपको ये सारा ब्लोटिंग एंड पीएमएस होगा। जब किसी को पीएमएस होता है, ब्लोटिंग होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ अ हार्मोनल मिसमैच। हार्मोनल मिसमैच क्यों है? बॉडी में फैट ज्यादा है ना। ओके हाँ ठीक है। हाउ टू रिड्यूस हिप फैट, एक्सरसाइज के डाइट, अंकिता ने पूछा है, ठीक है ना। अंकिता, आपका जो हिप फैट है ना, या वो आर्म फैट है या वो टमी फैट है, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। कोई भी अगर आपको बोले कि आपका स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, if anyone is asking you or telling you about spot reduction, oh I will make you lose weight on the arms, oh I'll make you lose weight on the hips, बहुत गलत बोल रहा है अंकिता। it is only a proper diet that is going to help you reduce fat from places where it's max। आपकी बॉडी में अगर हिप पे सबसे ज्यादा फैट है तो आपका वहां फैट जाना चाहिए, वो काम होना चाहिए एक डाइट का। लेकिन ऑर्गन या फिर आपका स्पॉट रिडक्शन जो है अपार्ट फ्रॉम लाइपोसक्शन, वो नहीं हो सकता, ठीक है। लाइपोसक्शन भी जब आपने फैट निकाला ठीक बात, जब आपने फैट नहीं निकाला वहां से नो ठीक बात। ओके, नाउ इज रेडीमेड व्हीटग्रास पाउडर अवेलेबल इन सुपरमार्केट्स हेल्दी? सोनल, अगर आपके पास एक वही ऑप्शन है तो थोड़ा सा प्रोडक्ट, आजकल तो इतने सारे वेबसाइट्स है जिसमें आपको प्रोडक्ट का रिव्यू मिल जाएगा, थोड़ा प्रोडक्ट का रिव्यू करके करो। मेरे यहाँ तो एक व्हीटग्रास का प्लांट ही है, आई लाइक जस्ट पिकिंग इट अप, वॉशिंग एंड ईटिंग माई व्हीटग्रास, है ना। देयर इज अनदर क्वेश्चन, वेट रिडक्शन, वाइल वेट रिडक्शन हेडेक होता है? नीतू, सुपर्ब क्वेश्चन। कि वेट रिडक्शन जब आप वेट कर रहे हो, ओके, आपको व्हाई डू यू फील हेडेक? सी, जब आपको एक वेट लॉस डाइट प्लान या आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी अलग करो, isn't it like whatever you do in life and if it is different, आपको उसका थोड़ा सा असर तो होता है ना। सो आप जब वेट लॉस डाइट कर रहे हो, सो इवन आवर क्लाइंट्स इन द फर्स्ट 3 days, आई वुड से 10% of them feel a little heavy in the head। वो क्यों होता है पता है? बिकॉज आप लोग खा रहे हो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइट। मोस्ट ऑफ यू आर ईटिंग अ डाइट रिच इन ब्रेड, रिच इन बिस्किट, रिच इन शुगर और फाइबर जीरो। और अब आप एक अच्छा सा हेल्दी डाइट खा रहे हो जिसमें आपकी शुगर नेग्लिजिबल है ना। दो आप भरे हुए हो पेट, आपको भूख नहीं है, आपको चाय भी मिल रही है, लेकिन स्टिल दैट मीन्स अगर इनिशियली आपका वेट हेडेक हो रहा है तो इट्स अ सुपर्ब साइन दैट आप पे ये डाइट काम कर रही है। लेकिन अगर ये हेडेक आपका कंटिन्यू हो रहा है तो आपको आपकी न्यूट्रिशनिस्ट को जाके बोलना चाहिए डाइट बहुत कम है, द फूड इज वेरी लेस, ठीक है ना। अलका जी पूछ रहे मेनोपॉज की वजह से वजन बढ़ गया है तो क्या करे? अलका जी, मेनोपॉज को पहले तो ब्लेम ना करे, ठीक है ना। मेनोपॉज एक बहुत नेचुरल एजिंग प्रोसेस या फिर आई वुड से ब्यूटिफाइंग प्रोसेस है, ठीक है ना। मेनोपॉज एक औरत की जिंदगी में तब आता था जब वो अपना सारा काम जो होता था, वेदर इट इज बेयरिंग चिल्ड्रेन, वेदर इट इज मेकिंग श्योर द चिल्ड्रेन हैव ग्रोन अप, नाउ शी इज सपोज टू बी एट पीस एंड एट रेस्ट, ठीक है ना। तो जो पीस एंड एट रेस्ट होती है तो उसके उस टाइम पे उसके हॉर्मोन्स थोड़े से ऊपर नहीं लेकिन नीचे हो जाते हैं। अलका जी, अगर आपका हेल्थ और आपका पूरा लाइफ हेल्दी खाने में आपने डाला होगा या आपने अच्छे से काम किया होगा या आपने बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाया होगा तो मेनोपॉज आपको परेशान नहीं करेगा, ना आपका वजन बढ़ जाता। लेकिन अभी के लिए आपको एक ऐसी डाइट खानी चाहिए या आपको एक ऐसी डाइट चाहिए जिसमें आपका वेट लॉस भी हो लेकिन आपकी कैल्शियम, आपकी आयरन और आपका फोलिक एसिड एंड मैग्नीशियम, ये 4 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। लीना, कवर अप करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको एक डाइट लेनी होगी। आई थिंक आई हैव प्रिटी मच कवर्ड अप ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे, है ना। वाटर रिटेंशन हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, सब हो गया। आई थिंक आई विल सी यू दिस टाइम ऑन सैटरडे, ठीक है ना। तो सैटरडे मिलते हैं,
तब तक के लिए I am going to say a big bye to all of you and take care, have fun, good night.